کیوں کہا جاتا ہے کہ پیغمبر صاحب کے بعد یعنی کہ جب ان کی وفات ہو گئی تھی اس کے بعد لگ بھگ آج سے 1300 سال پہلے کے لگ بھگ اسلام کو ہائی جیک کر لیا گیا، ایسا بہت لوگ کہتے ہیں، تو ایسا کیوں ہاں کہا جاتا ہے؟ کہتے کیا ہیں، 18 گھنٹے ان کی باڈی مدینہ کی مئی کی گرمی کے اندر پڑی رہی اور باہر لڑ رہے تھے یہ لوگ مدینہ والوں سے، اور پھر ابو بکر اور حضرت عمر لے کے گئے، ان کی ہاتھ اٹھوایا اور کہا کہ ہے کوئی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور شہادت دے دی کہ پروفٹ نے کہا تھا کہ صرف قریش کے لوگ پیغمبر خلیفہ ہو سکتے ہیں، انصار کا کام ہے کہ وہ قریشیوں کی خدمت کریں۔ یہ آپ کا ریزلٹ ہے the consensus they reached after the prophet had died۔ جب پروفٹ محمد نے کہا کہ مجھے کاغذ اور پین لا کے دو تاکہ میں ول لکھوں، تو سوچئے ایک تو ہمیں یہ جھوٹ پڑائے گا کہ وہ ان پڑھ تھے، وہ یعنی وہ مینیجر تھے، بزنس کرتے تھے، دنیا بھر گھومتے تھے، لیکن تھے ان پڑھ۔ وہ مانگ رہے ہیں پین، تو عمر کہہ رہے ہیں کہ ان کو پین اور پینسل نہیں دینا، کہیں قرآن کے خلاف نہ لکھ دے پیغمبر کچھ۔ This is happening while in his last hours, when he was dying because of poison given to him. He was asking someone to go, a general to go towards Damascus، اور وہ اس کو جانے نہیں دے رہے تھے، کیونکہ ایک تو کہا کہ وہ تو کالا ہے، وہ جو جس کو ذمہ داری دی گئی تھی، اس پہ ٹرسٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ان کی وفات کے بعد بلال کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، کوئی حدیث ہی نہیں ہے بلال کی کے ساتھ کی، سب مٹا کے ابو سفیان who was the enemy of the prophet، مکہ کے فال سے کچھ دن پہلے انہوں نے بیٹے اپنے معاویہ سے کہا کہ بھائی تو مسلمان ہو جا، اور پھر آپ نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ معاویہ is the one who made the compiled the Quran۔ وہ جو ڈمیسکس وہاں سے گئے ہیں، انہوں نے واپس آنے کا کسی نے نام نہیں لیا مکہ۔ یہ پوری امیہ ڈائنیسٹی جو تھی، جو 100 سال رہی اور بڑا برے حشر ہوا، ان کا جو خاتمہ ہوا، جہاں سے حجاج بن یوسف، محمد بن قاسم، یہ سارے نکلے ہیں، who created their own Islam over there، اور جن کے ہاتھوں پروفٹ کی فیملی کو مارا گیا، اور 100 سال تک جمعے کی نماز میں they would curse the family of the prophet۔ یہ امیہ ڈائنیسٹی تھی، اس نے اسلام پھیلایا دنیا میں، اسپین سے لے کے طارق بن زیاد سے لے کے محمد بن قاسم، یہ دونوں سن 711 کے ہیں۔ and then they got toppled، اور وہ عباسیوں کی حکومت آئی، اور کس طرح قتل عام ہوا کہ امیہ فیملی کے ہر شخص کو اس کے بازو کاٹ کے، وہ انجرڈ تھا، اس پہ تھال بچھا کے عباسائیڈز نے کھانا کھایا، and all of them bled to death، سوائے ایک کے جو اسپین بھاگا، ان کی بیگم وہ تھیں بیڈوین تھیں، بیڈوین نہیں بربر، so he escaped and landed in Spain۔ تو امیہ وہاں کی ڈائنیسٹی الگ ہے، لیکن آپ نے اسلام کو چھوڑنے میں you took minimum of I would say 10 years۔ پہلی جو جنگ کی گئی مسلمانوں کے خلاف، اس کو کہتے ہیں فار اپوسٹسی وارز، کہ لوگوں کو کافر کہلوا کے ان کو مروایا گیا۔ the companions of the prophet died in that، they were killed کہ زکوٰۃ ہمیں دو۔ جو زکوٰۃ ہر مسلمان کو دینی ہوتی ہے for the needy، وہ کہہ رہے تھے یہ اسٹیٹ کلیکٹ کرے گا۔ اس بحث میں لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کو کس نے اپوائنٹ کیا ہے خلیفہ؟ اس جھگڑے میں وار آف اپوسٹسی ہوئی۔ ابو بکر، حضرت ابو بکر کے زمانے میں خالد بن ولید ریپڈ a Sahabi's wife، then killed him and cooked a meal in his skull۔ یہ خالد بن ولید ہیں، آدھا ہندوستان اپنے بیٹے کا نام خالد رکھنا چاہتا۔ Ali raised the issue with the Khalifa at that time
कि what Khalid is doing is not right. He cannot do this. These are practicing Muslims declared to be kafir because they were not paying zakat to the state, they were paying it to the directly to the poor. तो अब ये तो सिलसिला चलता रहता है. आपके यहाँ तो हिंदी में भी मिल जाती मेरी किताब ट्रेजिक इल्यूजन ऑफ एन इस्लामिक स्टेट. इंग्लिश में भी है शायद अवेलेबल, उसको पढ़ें. जी जी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है. Not because I want the book to sell, I'm just saying कि उसमें need to काफी know हुआ क्या. जी Without prejudice. ये शिया सुन्नी की भी बात नहीं है, ये अहमदी इस्माइली की भी बात नहीं है. ये सिंपल पावर स्ट्रक्चर की लड़ाई और पावर की चाहत में इतना इंसान शैतान बनाता है कि बाप बेटा बेटा बाप नहीं रहते. उसको औरंगजेब ने मार दिया था ना भाई को, जो लाहौर में था, क्या नाम है, जाके सर काट के बाप के सामने पेश किया था. जी दारा शिकोह. दारा शिकोह और उनकी जी बताइए, दारा शिकोह ने इज द मुगल हु टुक द हिंदू टेक्स्ट, महाभारत है या दूसरे, उनको फारसी और फिर फ्रेंच में ट्रांसलेट करवाया. ये वो शख्स था जो पूरे हिंदुस्तान को एक कम्युनिटी समझता था, उसकी गर्दन काट दी और ले जाके बाप के सामने कहा, लो ये पड़ा हुआ तुम्हारा शहजादा. A man who murdered is considered by India's Muslims today as their wali. वली अल्लाह. नहीं किया. अच्छा, इनमें से किसी कमीने ने हज नहीं किया, बताइए. इनको गद्दी से इतना प्यार था, ये मौलवियों को भेज देते थे हज पे, बोले मैं नहीं जाता भैया. फर्ज है ना इस्लाम में हज. जी ना, जिसके पास इतना पैसा है जो अफोर्ड कर सकता है, तो ये खलीफा ने हज नहीं किया. कैन यू बिलीव इट? नो टर्किश खलीफा, नो अब्बासी, कोई गद्दी छोड़ के मक्का जाना ही नहीं चाहता था कि अरे वो गर्मी है, नल का पानी नहीं है, एयर कंडीशनिंग नहीं है और धुली धुलाई लड़कियां नहीं. मुसलमान जो नवाब है, बादशाह है, उसके पास 100 औरतों से कम का सवाल. अवध के नवाब को जब कहा निकलो यहाँ से गदर के बाद और कलकत्ता जाओ, 100 बीवियां और 200 लौंडियां. ये अवध का नवाब चला जा रहा है, ठुमका लगाए हुए, चूड़ीदार पजामा पहने हुए, मुंह में पान और मेहंदी लगाई हुई, माथे पे पता नहीं क्या, लोटा वोटा पकड़े हुए चले जा रहे हैं कलकत्ता 200 बीवियों के साथ. ये हुकूमत करने वाले लोग हैं, मुसलमान है क्या? अच्छा, एक सवाल जो ये सब आपने बताया उससे ये निकलता है कि आखिर वो कौन लोग थे जो इस्लाम को अगर हाईजैक करने की जो बात होती है उसके गुनाहगार थे, और उस वक्त क्या ऐसे हालात थे, और उस वक्त जो लोग थे उन्होंने इस सारी चीज की या इस पूरी कवायद की मुखालिफत क्यों नहीं की? भाई, इस्लाम के अंदर इस्लामिक स्टेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. जो कानून मदीना में था वो मक्का में नहीं था. मदीना के अंदर जो आपने एग्रीमेंट रसूलुल्लाह ने सेट किया पेगन्स के साथ, जूस के साथ, जो जिनको हम काफिर कहते हैं, वो सबसे एग्रीमेंट करके मदीना में एक सेक्युलर सी हुकूमत बनाई, जिसके अंदर उनकी अपनी मस्जिद में संडे को चर्च सर्विस होती थी. वहां के कवानीन अलग हैं, और जब मक्का में आते हैं तो वो सारे प्रिंसिपल्स हट जाते हैं. मक्का का कोई एग्रीमेंट, मदीने का कोई एग्रीमेंट मक्का में अप्लाई नहीं करता. कहीं नहीं कहा गया कि तुम एक वो हो, कंट्री बनाओ या ट्राइब हो. वो कुरान में क्लियरली लिखा है, वी मेड यू एज nations and tribes so you can live together, not that you fight each other. There is no commandment कि आप इस्लामिक रियासत बनाएं. पहली इस्लामिक रियासत बनी है इस हिंदुस्तान का पार्टीशन करके पाकिस्तान. वरना ट्राइबल कंट्रीज हैं, लिंग्विस्टिक कंट्रीज हैं, नेशनल बॉर्डर्स हैं. कोई उज़्बेकिस्तान है तो कोई ताजिकिस्तान है, लेकिन है सारे वो संस्कृत के नाम से. ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, स्थान सब में लगा हुआ. तो ये शरारत शुरू हुई है दमिश्क में उमय्यद डायनेस्टी से. ये माविया के अब्बा हजूर जो थे, क्या नाम है, प्रॉफिट के भी
बड़े सख्त दुश्मन थे उनका बनाया हुआ. The enemies of the Prophet Muhammad created the first caliphate in Damascus, and that too जो चर्च था उस पे कब्जा करके, जबकि प्रॉफिट ने कहा कि दूसरे की मस्जिद जो इबादत की जगह उसको नहीं गिराओ. तो आप देखिए डमास्कस का वो मैयद मॉस्क जो है वो तो चर्च है, और अभी आपके इर्तगाल साहब ने फिर से कब्जा किया है हाजिया सोफिया पे, जो चर्च था ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का, उसको बना दी मस्जिद. बड़े नाच रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के मुसलमान एक टांग के ऊपर भंगड़े डाल रहे हैं कि क्या है इर्तगाल, बच्चे का नाम रख दें. मैंने सुना इंडिया में हर बच्चे का नाम आजकल इर्तगाल रख दिया जाता है. इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में. हाँ, तो इंडिया के मुसलमान क्या करते हैं, जो पाकिस्तान करते हैं उसके 2 दिन बाद इंडिया का मुसलमान करता है. आधे तो सबके खानदान वहां बैठे हुए हैं ना हमारे कराची में, अमा हम अमा तुम कर रहे हैं. बेड़ा गर्क कर दिया पूरा आप लोगों ने पाकिस्तान बना के. आपसे मेरा मतलब आप खुद नहीं बल्कि जी मैं समझ रही हूँ. मुस्लिम लीग बने. But this is we can change all that. It is very very simple. जब टर्की के अंदर जिस जमाने में प्राइम मिनिस्टर उनकी चेलर थी और यहाँ पाकिस्तान में बेनजीर थी, तो एक लगता नहीं था कि वी आर सम के ये मुसलमानों को अकल आ गई है कि ये these women in the early 40s are prime ministers of big countries. दोनों की बड़ी एक हिस्टोरिक मीटिंग भी हुई थी, लेकिन फिर वही कोई जर्नल आ जाता है, हमारी दिमाग खराब हो जाता है. हमें हर वो शख्स जो कत्लेआम करता है वो हमारा हीरो होता है. कभी किसी ने दारा शिको डे मनाया इंडिया में? पता ही नहीं किसी को. औरंगजेब रोड बनाएंगे. राजा दाहिर के बारे में बच्चों को नहीं पढ़ाया गया. जीरो. आपको पता है बलोचिस्तान इज द फर्स्ट प्लेस जहां अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया रोकी गई, मकरान जिसे कहते हैं. नोबडी केयर. 3 दफा अरबों ने फौज भेजी हजरत उस्मान के जमाने में कि हिंदुस्तान पे हमला किया जाए. वो जमीन से आते थे, लेकिन मकरान जो बलोचिस्तान का हिस्सा मेन पॉपुलेशन सेंटर है, they were defeated there. It's not in Indian history. फिर ये समुंदर से आए मोहम्मद बिन कासिम कि हमारी लड़कियां उठा गए हो तुम, हमें हमारी. अरे तुम्हारी लड़कियां तुम कहां से लेके आ रहे थे श्रीलंका से औरतें? ये नहीं को पूछता है कि भाई औरतें तुम श्रीलंका से किधर से उठा के ले आए थे? मलाबार से ट्रेड करते थे और औरतें खरीदते थे. वहां तो कोई निहारी बनाने वाला नहीं होगा ना डमास्कस में, या पराठे या आलू समोसा ये सब. यहाँ से औरतें उठा के किडनैप करके आप डमास्कस में जाएं, अब भी आपको अल हिंदी नाम का नाम मिलेगा. मक्का में हिंदी, बिशावरी, इस टाइप के नाम हैं फैमिलीज के, अरबों के. तो बजाय इसके कि दिमाग खोल के अपनी गलतियां एक्सेप्ट करें, जिन्होंने हमें पनाह दी उनका शुक्रिया अदा करें. इतनी बड़ी सिविलाइजेशन इंडियन है और आप इंडिया में बैठ के पता नहीं क्यों नहीं एम्ब्रेस करते. क्या चीज है हिंदुस्तान की जो एक मुसलमान को पसंद नहीं आती? सब शियों को दुनिया में कहीं पनाह नहीं मिलती थी हिंदुस्तान के अलावा. दिस द ओनली प्लेस. वरना इसीलिए अरब वर्ल्ड में आपको शिया नहीं मिलेंगे. बिल्कुल. और जो अक्सर हमने देखा है कि जो तक़िया की बात कही जाती है अक्सर के जो शियाइज़्म में इनफैक्ट सबसे ज़्यादा क्योंकि उनको मारा जाता था और इसी वजह तो से उनको अलाउड था कहना कि हम सुन्नी हैं. यानी वो झूठ जिससे आपकी जान बच जाए. अब क्या है, अब सुन्नी सहिया कर रहे हैं. वो तक़िया उन्होंने कहा कि भैया तो इजाजत है हमें झूठ बोलने की, तो हम टैक्स के अंदर तक़िया कर लेते हैं, टैक्स नहीं देते. हमारी हर हरकत पे दुनिया तंग आई हुई हमसे. और अगर सिर्फ एक लोग तंग आए हुए होते तो बात है. चीन से लेके ऑस्ट्रेलिया में आप लीजिए, रूस में लीजिए, क्राइमिया में लीजिए, हर जगह लोग तंग आए हुए कि ये क्या है इन लोगों को प्रॉब्लम. मैं वॉर्सो में था, पोलैंड के अंदर, वहां टाटर मुसलमान कह रहे हैं तुम लोगों को क्या हुआ हुआ.
तातर वहाँ रह रहे हैं कोई 900 साल से इन पोलैंड। ये जहाँ से लेनिन की पैदाइश है वो इलाका भी मुसलमानों का है। उसको क्या कहते हैं, I forget. In my pocket, there are pockets of Muslim populations in Eastern Europe. They are all Europeanized. उन मुसलमानों को जो 8-8, 9-9 साल से वहां हैं, वो कहते तुम लोग का प्रॉब्लम क्या है?